Hello everyone. Good morning, all of you. Good morning, sir. So today we are going to do an activity, and this activity is based on the chapter A Bicycle in Good Repair. So, dear all, if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the machine has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? So we will enjoy this fun, and this chapter is written by all of you. Jairam K. Zaid. The bicycle which they are going to present you in this activity is standing here. You can see they have recycled. They have not recycled actually. They have reused the carton and they have created this bicycle with the help of this carton. And you can see the toolbox which is made by them. It's here. So I hope you are going to enjoy this activity. The writer, let us, Jairam K. Jairam, he knows a man who is considered to be his friend. So they made a promise that the next day they would go to a bicycle ride. So next morning, Jairam K. Jairam's friend, means the narrator's friend, came half an hour late, and he came and he checked the bicycle. So let us have the scene. The friend comes and he checks the bicycle and see This his. front wheel wobbles. It doesn't if you don't wobble this. This is dangerous. Do you have a hammer? Yes, I have hammer. Thank you. So he took out the front wheel and he was playing with it, twiddling it around. You can see how he is playing with the front wheel, and the bicycle has no front wheel right now. It's look like all bearings are wrong. So he said, it looks like all bearings are wrong. Don't trouble it. Put it back. Get off. I said don't trouble it. Put it back and get off. I will check it. Catch that. So, dear children, what does he do? He opens the front wheel and all the bearings were fallen down on the ground. So, you can see now the condition of the cycle. The front wheel is lying on the ground and all the bearings are also lying there. लेखक और उसका दोस्त दोनों ही जो बेरिंग्स ज़मीन में पड़ी हुई थी उनको ढूंढते रहे, और आधा घंटा ढूंढने पर उनको केवल 16 बेरिंग्स मिल पाई, 16 गोलियां मिल पाईं. और लेखक ने क्या किया कि फिर से वो न खो जाएं, गोलियां न खो जाएं, तो उन गोलियों को उठा करके उसने अपने हैट में रख लिया, अपने हैट में रख लिया. वैसे ये समझदारी का काम नहीं था क्योंकि हैट भी उनसे गंदी हो सकती थी, लेकिन लेखक ने ऐसा कर लिया. लेखक और उसका मित्र 16 जो बेरिंग्स थी उनको खोजने में सफल रहे. लेखक ने जो 16 बेरिंग्स मिली हैं उनको हैट में रख लिया. और अभी इसी बीच लेखक का दोस्त कहता है कि अब उसकी चेन को, साइकिल की चेन को उसे चेक करना चाहिए, और तुरंत वो गियर केस को निकाल लेता है. लेखक रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो अपना काम जारी रखता है. तो लेखक के किसी जानने वाले ने एक बार एक बात कही थी कि अगर आपका गियर केस ख़राब हो जाता है
तो आपको उसे रिपेयर नहीं कराना चाहिए, फिर आपको नया गियर केस खरीद लेना चाहिए, क्योंकि नया गियर केस सस्ता पड़ता है। और इस तरह से जो उसका दोस्त है वो लेखक को बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो वही लोग कहते हैं जिनको साइकिल के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। You are right. And after that, the friend, he opened the gear case within 5 minutes and the gear case was in 2 pieces. गियर केस को 5 मिनट से कम समय में ही दोस्त उसका खोल देता है और अब ज़मीन पर, रास्ते पर गियर केस 2 टुकड़ों में बटा पड़ा था और लेखक और उसका मित्र दोनों ज़मीन पर जो उसके पेच थे, जो उसके स्क्रूज थे, उसको ढूंढ रहे थे। दोनों नीचे ग्राउंड में रास्ते पर पेच ढूंढ रहे थे और लेखक का दोस्त कहता है कि पता नहीं कैसे पेच गायब हो जाते हैं, ये एक रहस्य की बात है। लेखक का कॉमन सेंस कहता है कि उसे अब अपने इस मित्र को रोकना चाहिए और अपनी मशीन को, अपनी साइकिल को इस पागल के गुस्से से बचा लेना चाहिए। और लेखक अब निश्चय करता है कि वो इसको रोकेगा, गर्दन पकड़ के इसकी बाहर निकालेगा, कफ गर्दन का कॉलर पकड़ के इसको बाहर निकालेगा, ऐसा लेखक अब सोच लेता है। लेकिन जब दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात आती है तो इस मामले में लेखक कमज़ोर पड़ जाता है और ऐसा नहीं कर पाता। अब वो पेच ढूंढना बंद कर देता है और फिर क्या करता है कि चैन को उस और गियर केस को कस देता है, चैन को उसमें लगा देता है और वो इसे इतनी टाइट कर देता है कि अब पहिया भी नहीं घूम पाता। फिर इतनी लूज़ कर देता है कि पहले से भी 2 गुनी ज़्यादा चैन लूज़ हो जाती है, ढीली हो जाती है। अब उसके बाद मज़े की बात यह है कि फिर वो कहता है कि भाई हमको अब फ्रंट व्हील को फिर से उसकी जगह पर लगा देना चाहिए। वो सोचता है कि फ्रंट व्हील को फिर से उसकी जगह पर लगा देना चाहिए और वह फोर्क को पकड़ता है और पहिया लगाने की कोशिश करता है। What is the joke? Well, I am an ass. We have forgotten the balls. It was the first time the writer realized that he had said that made the writer respect him. The writer asked him what had led him to the discovery. पहली बार लेखक के मन में उसके लिए आदर पैदा हुआ, क्योंकि पहली बार कुछ उसने ऐसा कहा था जिससे उसके मन में उसके लिए आदर आया और लेखक ने उसे पूछा कि ये खोज तुमने कैसे की कि तुम गधे हो, कि तुम गधे हो। द नरेटर वॉज हंटिंग फॉर हिज हैट। नरेटर अपना हैट ढूंढने लगता है और जब हैट मिल जाता है उसको टॉपसी टर्वी कंडीशन में, उल्टा पुल्टा रास्ते पर पड़ा हुआ, तो फिर उसमें गोलियां जो पहले 16 रखी थी उसमें केवल और केवल निकलती हैं फिर 11। कितनी निकलती हैं? 11। केवल 11 गोलियां उसमें इसको मिलती हैं। इस तरह से 11 गोलियों में से 6 गोलियां एक साइड के पहिए में एक साइड लगाई, 5 एक साइड लगाई और बाकी सब भगवान भरोसे छोड़ दिया। और कहने की बात नहीं है, जो शुरुआत में वो कह रहा था कि पहिया फ्रंट व्हील वॉबल कर रहा है, अगला पहिया वॉबल कर रहा है, हिल रहा है, वो पहले तो नहीं हिल रहा था, लेकिन पहिया अब हिल रहा था। पहिया अब वॉबल कर रहा था और अब उसके मित्र ने कहा कि देखो इस समय इसी से काम चल जाएगा। लेखक ने कहा अपने मित्र से कि मित्र, तुम्हें साइकिल की मरम्मत करते हुए देखना मेरे लिए वास्तव में बहुत उपयोगी है। केवल तुम्हारे कौशल ने ही मुझे आकर्षित नहीं किया, बल्कि तुम्हारा जो हास्य रस से भरा हुआ आत्मविश्वास है, तुम्हारी जो आशावादिता है, उसने भी मुझे बहुत लाभ पहुंचाया है। इस तरह से लेखक अपने मित्र से कहता है।
इस बात से प्रोत्साहित होकर जो मित्र है वो गियर केस को फिर से सेट करने में, फिर से फिट करने में जुट जाता है। फिर उसने साइकिल को घर की दीवार के साथ खड़े किया और दूसरी ओर से काम करने लगा। ठीक है, फिर उसने पेड़ के पास साइकिल खड़ी की और इस तरह से, एक तरह से कहिए कि साइकिल के बीच में और उस लेखक के मित्र के बीच में संघर्ष सा शुरू हो गया, स्ट्रगल जैसा शुरू हो गया। कभी वह साइकिल को नीचे गिरा लेता, कभी वो साइकिल के ऊपर गिर जाता, कभी अपना संतुलन खो बैठता। समटाइम्स ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड समटाइम्स ही knocked down himself. After some time he became very angry. कुछ समय के बाद उसे बहुत गुस्सा आया and now he started manhandling with the bicycle. He started manhandling with the bicycle. He just like a fighter with the bicycle. He was fighting with the bicycle. इसी तरह से साइकिल से उसका संघर्ष चलता रहा। थोड़ी देर बाद साइकिल को भी पता नहीं क्या सूझी, साइकिल एकदम से उसके ऊपर गिरी और वो एकदम ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर मैंने जाकर उसको उठाया, मैंने से मतलब लेखक ने जाकर उसको उठाया और फिर लेखक ने कहा कि भाई अब फिर तुम इसको रहने दो जैसा भी है। और फिर लेखक उसको अपने किचन में लेकर के गया अपने मित्र को और जाकर उसके जो थोड़े थोड़े ब्रूजेस हो रहे थे, जख्म हो रहे थे, वुंड्स हो रहे थे, उनको धुलवाया और जितना हो सका था उसको साफ़ किया। और इस समय बज चुका, 1:45 बज गया था इस समय और लेखक धूल से सना हुआ था पूरी तरह से और कह रहा था कि मेरे विचार से अब इससे काम चल जाएगा। वह उठा और उसने अपना माथा पोंछा। मैंने भी जितना साफ़ हो सकता था उसको किया। मैंने से मतलब यहाँ लेखक से मतलब है। और इस तरह से साइकिल की कहानी देख लीजिए। साइकिल उसी कंडीशन में जैसे उसने खोल के ख़राब की थी, उसी समय ख़राब कर दी थी पूरी, ऐसी ही साइकिल ख़राब पड़ी हुई है। जो अच्छी खासी साइकिल थी उसने उसको बिगाड़ के रख दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसके लिए स्पेशल मैकेनिक का होना ज़रूरी है। जो व्यक्ति उसके बारे में कुछ नहीं जानता वो उसको ठीक नहीं कर सकता है। So with this a short note, this chapter concludes and these two students, Kavya Vankoti and Rohit Kumar, have performed the act of the narrator and his friend. And this cycle is made by Shivalik House students and Dheeraj Kumar has done a lot of work in this bicycle. Okay, thank you very much.